Exam dost, success का host, सैनिक नवोदय में topmost. Which of the following pair of fractions represent like fractions? Now we know that like fractions are fractions which have the same denominator. ऐसे fractions जिनका denominator same होता है, they are like fractions. And if you look at the option, in the first option, the numerator are 4 by 7 and 4 by 7. तो यहां पर numerator same है but denominator same नहीं है. इसका मतलब this is not a like fraction, and when the denominators are not same, we call them unlike fractions. Now remember, for unlike fraction, numerator can be same or can be different, but denominators are different. अलग अलग डिनोमिनेटर्स होंगे. और आप ऑप्शन ए में देखो, डिनोमिनेटर आर 7 and 9, so they are unlike fraction. Option B, 3 by 8 and 5 by 8, here the denominators are same, so we call them like fractions. Option C, 9 by 7, 8 by 5, they both are improper and unlike fractions. Option D, 6 by 7 and 2 by 9, both the denominators are different, so we call them unlike fractions. Our answer is option number B. They are asking to find out a pair of like fraction. 3 by 8 and 5 by 8 is our final answer. Next question says, which of the following pair of fractions does not represent like fraction? इसमें से कौन सा like fraction नहीं है? As we have discussed, like fractions denominator same होते हैं. Unlike fractions, denominator different होते हैं. If you look at the first option, here both the denominators are 9 and 9. So we have the same denominators. And when we have the same denominators, we call them like fraction. Similarly, if you look at the option B, both the denominators are 7 and 7. So again, they are like fractions. Option number C, one of the fraction is 3 by 5, another is 3 by 4. The denominators are different, so they are unlike fraction. And option number D, 1 by 6 and 5 by 6, they also are like fractions. Question is asking, which of the following is not a like fraction? Answer is option number C, it is an unlike fraction. Which of the following is a proper fraction? Now, very basic question. Proper fraction, we know. Proper fraction is a fraction where numerator is smaller and denominator is greater. And improper fraction is a fraction where numerator is either equal to the denominator or greater than the denominator. So on that purview, let us look at the first option. The first option is 69 upon 55. Here I say that the numerator is greater than the denominator. So this is improper fraction. Option B, again the numerator is 47, denominator is 37. I see that the numerator is greater than the denominator. So this too is an improper fraction. Option C, I see that 53 is the numerator, 24 is the denominator. This is also an improper fraction. Option number D, numerator is 26, denominator is 45. Numerator is smaller than denominator, so this is a proper fraction, and that's our answer, option number A. Question is asking, which of the following is not a proper fraction? Not a proper fraction, not proper. They are asking which of the following is not proper, means we have to find which of the following is proper. Or
हमें क्या ढूंढना है, हमें ये ढूंढना है कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता वो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। एंड इन इम्प्रॉपर न्यूमरेटर इज आइदर इक्वल टू डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। लेट्स लुक एट दैट। ऑप्शन नंबर ए, न्यूमरेटर इज 27, 13 is denominator. So I can see that numerator is greater than denominator and this is a improper fraction. Then that is what we have to find out. यही हमें ढूंढना है। Option number B, numerator is 14, denominator is 23. So here I see that numerator is smaller than the denominator, so this is a proper fraction. Option number C, numerator is 11, denominator is 12. So again this is an example of a proper fraction. Option number C, again numerator is 13, denominator is 18. Answer, this is also a proper fraction. So my answer is option number A, not a proper fraction. Next question, which of the following is an improper fraction? Improper fraction where the numerator is either equal to denominator or whether the numerator is greater than denominator. In the first option I see that the numerator is 4, denominator is 13, numerator is smaller than denominator, so it is a proper fraction. In the second option again we see that the numerator is 11, denominator is 20, numerator is less than denominator. This is also a proper fraction. Option number C, our numerator is 36, denominator is 23. We see that the numerator is greater than denominator and this is a improper fraction. Option number D, numerator is 18, denominator is 31. So numerator is less than denominator. It is a proper fraction. Question is asking improper. Answer is option number C, 36 upon 23. Which of the following is not improper fraction? Which of the following is not an improper fraction? इसमें से कौन सा improper fraction नहीं है? Improper fraction नहीं है, not improper. Not improper का मतलब होता है we have to find कौन सा proper है. So basically we have to find out which fraction is a proper fraction. Now 1. Whenever you have a whole number, remember आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डिनोमिनेटर दे दीजिए 1. सो अगर आपको किसी भी होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर में लगा दीजिए 1. नाउ अब यहाँ पर न्यूमरेटर भी 1 है, डिनोमिनेटर भी 1 है. व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल देन इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और क्वेश्चन में हमें ढूंढना है प्रॉपर, पर ये तो आ रहा है इम्प्रॉपर. ऑप्शन नंबर बी देखिए, न्यूमरेटर इज 14, डिनोमिनेटर इज 13. Numerator is greater than denominator, so it is a improper fraction. 27 numerator, 16 denominator. So again numerator is greater than denominator, improper fraction. 16 upon 17, numerator is 16, denominator is 17. Numerator is less than denominator, it is a proper fraction. Our answer is option number D. Next question, they are asking to convert 14 whole 5 upon 16 to improper fraction, and to converting this into improper fraction you multiply the whole number and 14 into 16 हम करेंगे, which will be the part of the numerator, and to this product I will add the numerator 5. This will give us the numerator. Upon denominator will be same to same 16. So numerator में 14 और 16 मल्टीप्लाई कर दीजिए, होल नंबर एंड डिनोमिनेटर. 14 into 16 is 224 और उसमें आप 5 प्लस कर दीजिए एंड इन द डिनोमिनेटर यू टेक 16. 224 plus 5 is 229 upon 16. That is our answer, and it is an improper fraction. That is option number D. Convert 237 upon 14 into a mixed fraction. For converting
improper fraction. This is right now a improper fraction. 237 upon 14 improper fraction है और उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. So we have to divide it and we have to find the रिमाइंडर. 23 माइनस 14 ये 9 हो गया, ये 7 आ गया. 14 6 जा 84. Subtracting this is 3, this is 1. So my remainder is 13. और remainder numerator बन जाएगा. Our whole number is 16 and whole number will become the quotient will become the whole number. So quotient will be whole number, remainder is numerator and divisor 14 will be the denominator. So mixed fraction की जगह पर हम लिखेंगे quotient value 16. Numerator के लिए we will write down remainder 13 and for denominator the divisor will be 14. Answer is 16 whole 13 upon 14, which is option number A. The pair representing unlike fraction we have discussed. Fraction with different denominator. अब यहां पर थोड़ा सा ट्रिक कर दिया. पहला है 5, तो 5 को फ्रैक्शन बनाना है तो 5/1 लेंगे और दूसरा 2/7 लेंगे. This is the unlike fraction because the denominators are different. Now option B, you might be confused कि ये तो दोनों होल नंबर है. दोनों होल नंबर को फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? 1 को 1/1, 3 को 3/1. Now again you say they both have same denominators, तो same denominator मतलब ये तो like fraction है. Option C, both the denominators are 8 and 8, like fractions. Option D, both the denominators are 15/11 का भी denominator 11 है, 19/11 का भी denominator 11 है. So this is also a like fraction. So unlike fraction, answer is option number A. The pair which does not represent unlike fractions does not represent unlike fractions. So we have to find out which of the following is not unlike. Not unlike का मतलब हमें ढूंढना है कौन सा like है. Not unlike का मतलब basically we have to find out the like fractions. Like fractions means same denominator. So let's look at the options having the same denominator. Here the 4/7, 5/9 are different denominator, they are unlike. 1/1 and 1/3, they too are unlike. 13/8 and 17/12 was also different denominators are unlike. 5/1, 7/1. So we are making first, converting them first to a fraction. कैसे? Denominator में 1 लगा के, and since they have same denominator, they are like fractions. Our answer, option number D. Which of the following fraction is in its lowest term? इसमें से कौन सा ऐसा fraction है जो अपने lowest term में है? Now the fraction which is in the lowest term has the HCF 1. जो fraction अपने lowest term में होता है उसका HCF 1 होता है. अगर ये आपको नहीं समझ में आता तो another जो method which we can use here is we can take the fraction and we can try to simplify it by a common value. I'll show you both actually. पहले हम देखते हैं option A 42/18. Now here we see that 42 and 18 they both come in the table of 6. तो इनको lowest term में लाएंगे, 6 से divide करेंगे, 6 7 जा 6 3 जा. So now they become 7/3. Now 7/3 में 7 भी prime number है, 3 भी prime number है. ये अब और lowest form में नहीं जा सकता. This is the final lowest term. So 42/18 is lowest term 7/3. Question is asking कि कौन सा term है जो lowest form में है. तो 42/18 तो lowest form में नहीं है because उसकी lowest form 7/3 हमने निकाली. Let's go to the second option, 24/68. I'll go to option number B, 24/68. I can divide both of them by 2 and by 4. दोनों को 4 से divide करते हैं. This is 4 6 जा 24. This is 4 1 जा 4, 4 7 जा
28, तो ये 6/17 में 17 प्राइम नंबर है, मतलब और ये लोएस्ट टर्म में नहीं जा सकता. सो 24/68 लोएस्ट टर्म इज 6/17. सो वी कुड कन्वर्ट 24/68 को 6/17 में हमने कन्वर्ट किया, मीन्स इट वॉज ऑल्सो नॉट इन इट्स लोएस्ट फॉर्म. लेट्स गो टू द ऑप्शन नंबर सी, 33/52. 33/52 में बोथ 33 एंड 52, इसको दोनों को हम no, we cannot actually, there is no number which we can use to divide both 33 and 52. तो इनको हम किसी भी कॉमन नंबर, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में दोनों 33 और 52 आ जाते हो. इसका मतलब दिस इज ऑलरेडी इन द लोएस्ट टर्म. इसको हम और लोएस्ट टर्म में नहीं ला सकते. ऑप्शन नंबर डी इज 14/63. 14 एंड 63 द बोथ कम इन द टेबल ऑफ, दोनों 7 के टेबल में है, तो दोनों को 7 से डिवाइड करो. 7 2 जा 7 9. So this is 2/9. So this is also not in its lowest form. इसका lowest form तो 2/9 आ रहा है. 33/52 it is in its lowest form, क्योंकि हम और इसे किसी लोअर फॉर्म में लोएस्ट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते. So that is our answer. ऑप्शन नंबर सी 33/52. Now the another way of doing it, हम जिसमें HCF 1 होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, वो अपने लोएस्ट टर्म में होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट 33 एंड 52, तो इनके अगर आप दोनों के फैक्टर्स निकालो और फैक्टर निकाल के अगर आप देखो कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. जैसे 33 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 11 आ रहा है. 11 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से. सो द फैक्टर्स ऑफ 33 आर 3 into 11. एंड 52 के फैक्टर्स देखते हैं. पहले से 2 से डिवाइड कर लो. 2 2s are 4, 1 कैरी, 2 6s are 12. अगेन डिवाइड बाय 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6. Divide by 13, this is 13. So this is 2 into 2 into 13. So the factors of 33 and 52, there are no common factors. इनका कोई भी common factor नहीं है. And when you have no common factor, it means the common factor is 1. देखिए 1 दोनों में present है, here and here also. And when the common factor is 1, it means HCF is 1. एंड द केसेस जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर का HCF 1 आता है, वहां पर हम कह सकते हैं दैट दिस इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म. वो अपने लोएस्ट फॉर्म में है. जनरली जो स्टैंडर्ड अप्रोच दिया है बुक्स में भी HCF निकालने का ही दिया है, पर कई रेफरेंस बुक में उन्होंने इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया. वो भी करेक्ट है, बट एक्चुअल इसकी जो डेफिनेशन है मैथमेटिकल, वो ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF अगर 1 आ जाए, इसका मतलब वो अपने लोएस्ट फॉर्म में है. तो ये ट्रू फॉल्स के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये ट्रू फॉल्स में पूछेंगे. व्हेन द HCF इज 1, कैन वी से इट इज इन द फ्रैक्शन इज इन द लोएस्ट फॉर्म? यस. जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपने लोएस्ट फॉर्म में है. इनको और लोएस्ट फॉर्म में हम नहीं ला सकते. Which of the following fraction is in its simplest form? अब ये क्वेश्चन कंप्लीटली हम HCF के बेसिस पे करेंगे. पहला ऑप्शन है 18/54. So let us do this on the basis of HCF. जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में उसका HCF 1 आना चाहिए. The HCF should be 1. If the HCF of numerator and denominator is 1, it means that fraction is in its lowest form. Let us start with the first option, 18 and 54. So we will find out the HCF of 18 and HCF of 54. अब इनका HCF निकालना सिंपल है. एक इजी अप्रोच आप ले सकते हैं कि 18 लिख लिया, ये 54 लिख लिया. इनको ब्रेक करेंगे. 18 को ब्रेक कर सकते हैं 2 into 9. 9 को ब्रेक कर सकते हैं 3 into 3. So these are the factors of 18. 2 into 3 into 3. Very simple. 9 को ब्रेक कर लिया 3 into 3. 18 को 2 into 54 को ब्रेक करेंगे 6 into 9. 6 और 9 अगेन कंपोजिट नंबर है. 6 को ब्रेक करेंगे 2 into 3. 9 को ब्रेक करेंगे 3 into 3. अब these are the prime factors now. हमने ये prime factors निकाल लिए. Now you look at, is there any common factor? Yes, there is a common factor. 2 is a common factor, दोनों में present है. 3 is a common factor, दोनों में present है. 3 is also a common factor. तो इनका common factor तो आ रहा है. Since they have a common factor, their HCF is not 1. इनका HCF 1 नहीं है. और अगर इनका HCF 1 नहीं है, means they are not in lowest form.
दे कैन बी कन्वर्टेड टू द लोएस्ट फॉर्म। अब इसको कैसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसके लिए थोड़ा आपको टेबल पर कमांड लेना होगा। अच्छा, इनका HCF आ क्या रहा है, इनका HCF आ रहा है कॉमन फैक्टर 2 है, वो ले लो। दूसरा कॉमन फैक्टर, जैसे पहला एक कॉमन फैक्टर दोनों में 2 है, 2 ले लीजिए। दोनों में 3 है, 3 ले लीजिए। और एक 3 है, बिल्कुल दूसरा 3 भी है, इसको भी, जितने भी कॉमन फैक्टर है उनको आप लिख लो इधर से। अगला ये 3, तो उसके लिए इधर कोई 3 नहीं है, तो कॉमन फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 18। तो अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 18 से ही डिवाइड कर दो तो ये अपने लोएस्ट फॉर्म में आ जाएंगे। सो लेट अस डिवाइड देम बाय 18। 18 1 जा 18 एंड 18 3 जा 54। सभी टेबल को प्लीज फ्रंट पे रखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें। तो लोएस्ट फॉर्म में 18/54 1/3 होता है। इट मींस इट इज नॉट इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। सो ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। गोइंग टू द ऑप्शन बी, 15/42। Now let's find out the HCF of 15 and 42. 15, 42. Let's write down the common factors. 15 को 3 into 5 लिख सकते हैं। 42 we can write it 6 into 7. 6 can be written as 2 into 3 into 7. So these are the factors 3 into 5, 15 के factors। 42 के 2 into 3 into 7। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 3 है, मतलब इनका HCF 3 है। HCF 3 है, इसका मतलब दे आर नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म के लिए HCF 1 होना चाहिए, पर यहां 3 है, इसका मतलब ये अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। इनको अगर लोएस्ट फॉर्म में लाना है तो आपको इनके HCF से डिवाइड करना पड़ेगा। HCF 3 है। दोनों नंबर 15 और 42 को आप 3 से डिवाइड करो। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 3 5 15। 42 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 14। सो दिस इज नाउ 5/14 एंड दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। अगेन हमें क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो 15/42 इज ऑल्सो नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, नॉट अवर आंसर। लेट अस नाउ गो टू 21 एंड 56, ऑप्शन नंबर सी। 21 और 56 हम दोनों के HCF निकालेंगे, 21 एंड 56। इनको इनके बेसिक टेबल के फॉर्म में आप लिख लो। 21 इज 3 into 7, दोनों प्राइम नंबर्स हैं और ब्रेक नहीं हो सकते, तो 3 और 7 इनके प्राइम फैक्टर्स हो गए। 57 इज 7 into 8 होता है, जो जगह 7 into 8 को हम लिख सकते हैं 4 into 2, और उस 4 को लिख सकते हैं 2 into 2। सो द 56 के फैक्टर हो गए 7 into 2 into 2 into 2। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन फैक्टर 7 आ रहा है, मतलब इनका HCF 7 आ रहा है। और अगर इनका HCF 7 आ रहा है मींस इट इज नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म, क्योंकि लोएस्ट फॉर्म के लिए HCF 1 आना चाहिए। तो इनको अगर लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप इसको HCF 7 से डिवाइड कर दीजिए, you will get the lowest form. Divide by 7, it is 7 3s are 27, 7 8s are 56. So 3/8 is the lowest form of this fraction, and it is not going to be our answer. Let's check the 45, option number D, 45/31. Actually यहाँ पर बिना कुछ किए ही हमारा आंसर आ रहा है। क्यों आंसर आ रहा है, क्योंकि 31 जो डिनोमिनेटर है इट इज अ प्राइम नंबर, और अगर ये प्राइम नंबर है तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, इसका एक ही फैक्टर होगा, एक 1 होगा और एक ये खुद होगा। तो अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक वैल्यू अगर प्राइम नंबर है, इसका मतलब वो अपने लोएस्ट फॉर्म में है। दोनों प्राइम नंबर है तो भी लोएस्ट फॉर्म में, दो में से एक भी प्राइम नंबर में तो लोएस्ट फॉर्म में। कैसे देख लीजिए, 45 और 31 का HCF आप निकालिए। 45 इज 5 into 9, विच इज 9 को ब्रेक कर सकते हैं 3 into 3। 31 इज 1 into 31, तो वो तो ब्रेक नहीं हो सकता। तो आप देखो दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, नो कॉमन फैक्टर। रिमेंबर, जब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है देन 1 इज द कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर उनका 1 हो जाता है, क्योंकि 1 तो सभी हर एक नंबर का फैक्टर होता है। एंड व्हेन 1 इज द कॉमन फैक्टर मींस देयर HCF इज 1। So in this case I see that the HCF of both 45 and 31 is 1, and when the HCF is 1 it is in the lowest form, in the simplest form present है। So our answer is option number D. Now for now on let us solve these questions by the method of converting them into the lowest form. Option number A here is 63/45. Both 63 and 45 they come in the table of 9, as in 9 7s are 63
and 9 5s are 45. So 63 upon 45, the lowest form is 7 upon 5. So option number A is not in the simplest form. Option B, 17 upon 56. Now we know that 17 and 56, they do not come in the table of any single number. तो 17 और 56 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते. मीन्स दिस इज इन द लोएस्ट फॉर्म. हम इसको और किसी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. दिस इज ऑलरेडी इन द लोएस्ट फॉर्म. Which of the following fractions is not in its simplest form? Option A, 63 upon 45. Now both 63 and 45 they come in the table of 9. तो ये दोनों 9 के टेबल में आप 9 से सिंप्लीफाई कर दो. 9 7 जा 63, न्यूमरेटर 7 हो गया. 9 5 जा 45, डिनोमिनेटर 5 हो गया. तो now this actually becomes 7 upon 5. इसका मतलब 63 upon 45 is not in the simplest form. Its simplest form is 7 by 5 और क्वेश्चन में वही पूछा है इन्होंने. सो दिस इज अवर आंसर. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन बी, 17 अपॉन 56 में 17 प्राइम नंबर है. एंड आई टोल्ड यू वन थिंग दैट अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक भी प्राइम नंबर हो जाए और दूसरा नंबर अगर उसका मल्टीपल नहीं है, जैसे 56 तो 17 के टेबल में नहीं आता, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 17, तब ये लोएस्ट टर्म में ही होगा. इसका और लोएस्ट टर्म पॉसिबल नहीं है. So option number B is already in the lowest term. It cannot be our answer. 23 upon 51 में भी 23 is a prime number and 51 उसका multiple तो नहीं है, तो ये भी अपने lowest form में ही है because 23 is a prime number. So this is also in the lowest form and it cannot be the answer. And so 32 upon 21 is also, even though 32 और 21 में कोई ऐसा प्राइम नंबर तो नहीं है, पर इनका कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है. ये किसी भी कॉमन नंबर से दोनों डिवाइड नहीं किए जा सकते. 32 सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, 21 3 से और 7 से होगा. सो अगेन यू कैन नॉट कन्वर्ट देम इनटू एनी फर्दर लोएस्ट फॉर्म. दे आर ऑलरेडी इन द लोएस्ट फॉर्म. सो दैट ऑल्सो ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट बी आवर आंसर. आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. The fraction equivalent to 3/4 with denominator 28. इन्होंने कहा है कि ऐसा फ्रैक्शन बताओ जो 3/4 के इक्विवेलेंट है और उसका डिनोमिनेटर 28 है. क्वेश्चन सिंपल है. या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं या डायरेक्ट डिनोमिनेटर के रिलेशन से कर सकते हैं. देखो ये 3/4 का डिनोमिनेटर 4 है और जो फ्रैक्शन बनाना है उसका डिनोमिनेटर 28 है. मीन्स इंटू 7 किया है डिनोमिनेटर में, और अगर डिनोमिनेटर में इंटू 7 किया है तो न्यूमरेटर में भी आपको इंटू 7 करना होगा. आंसर हो जाएगा 21. दैट्स ऑप्शन नंबर बी. Can also solve this question using the cross multiplication method. It is 3 upon 4 equals, let us take the numerator as x, denominator as 28. Let's cross multiply. Multiply 3 and 28, multiply 4 and x. This will be 3 multiplied by 28 equals 4 multiplied by x. Take the 4 from right hand side to left hand side. ये denominator में आ जाएगा. It will be 3 into 28 upon 4. 28 और 4 हम divide कर देंगे. We will get 7. 4 and 28 will divide by 4. 4 1s are 4. 4 7s are 28. Multiply the numerator. 3 into 7. It's 21 equals to x. Answer is numerator value is 21 और complete fraction जो हो जाएगा वो 21 upon 28 हो जाएगा. Again the answer is option number B, which is the similar option. The fraction equivalent to 5/8 having numerator 80. फिर से हमें equivalent fraction बनाना है 5/8 का और इस बार उसका numerator 80 होना चाहिए. मीन्स हमें 5 को 80 बनाना है. 5 को 80 कैसे बनाना है, तो 16 का टेबल देख लो. 5 इंटू 16 80 होता है. अगर हमने न्यूमरेटर को 16 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर भी हमें 16 से मल्टीप्लाई करना होगा. 16 इंटू 8 ये आ जाएगा 128. सो आवर आंसर इज 80 अपॉन 128. दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. अब आप बोलेंगे ये इक्विवेलेंट कैसे है, तो ये इक्विवेलेंट ऐसे है कि अगर 80 और 128 दोनों को वापस आप 16 से डिवाइड कर दो तो ये 80 को 16 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा. 128 को 16 से डिवाइड करेंगे 8, तो ये वापस 5/8 16 से डिवाइड कर दें तो 5/8 बन जाता है. सो दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. और अभी अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5
अपॉन 8 का न्यूमरेटर 80 बनाना है तो डिनोमिनेटर को 128 होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को 16 से मल्टीप्लाई करना है. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी आप कर सकते हैं, वैसे हमने दे हैव सीन लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट आल्सो. Now here in this question they are asking the equivalent fraction to 72 upon 108. इसका equivalent fraction लेना है और डिनोमिनेटर इसका 36 होना चाहिए. Now 108 और 36 का रिलेशन क्या है? This relation is divided by 3. अगर आप 108 को 3 से डिवाइड कर दो तो आपको 36 मिल जाएगा. तो डिनोमिनेटर को हमें डिवाइडेड बाय 3 करना है, so numerator also will be divided by 3. 72 divided by 3 will be 24. So our answer is 24 upon 36, which is option number B. The fraction equivalent to 144 upon 96. Having a numerator as 66. तो अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि टेबल हमें 144 को 66 में कन्वर्ट करना है, तो टेबल तो नहीं चल पाएगा यहाँ पर. तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करिए. इसको आप x ले लीजिए एंड नाउ लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई. x को 144, 96 को 66 के साथ. दिस विल बिकम 144 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल 66 मल्टीप्लाइड बाय 96. अब 144 को आप लेफ्ट साइड से राइट साइड ले लीजिए, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. x इक्वल्स टू 66 मल्टीप्लाइड बाय 96 अपॉन 144. अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, इन सारे टर्म्स को कैंसिल करना पड़ेगा. टर्म्स को कैंसिल करना है तो 66 एंड 144 ये दोनों 6 से आप कैंसिल कर सकते हो, या 96 144 इसको आप 48 से भी कट कर सकते हो, इसको आप 24 से भी, जिससे चाहो आप उससे कट कर सकते हो. फॉर सिंपल ईजी, फॉर मेकिंग इट सिंपल मैं इसको 16 लेट अस डिवाइड बाय 16 का टेबल देखिए. 16 6 जा 96 होता है एंड 16 9 जा 144 होता है. 6 और 9 को हम दोनों को 3 से कट कर सकते हैं. 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा. डिनोमिनेटर में 3, न्यूमरेटर में 66, दोनों को 3 से कट कर लीजिए. 3 1 जा 3 हो जाएगा और ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6. तो 22 इंटू 2 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 44. तो न्यूमरेटर हमारा 66 है, डिनोमिनेटर हमारा 44 है. आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Which of the following expressions result in a value greater than 1? Let's start with the option number A. 1 by 5 plus 1 by 8. So when we have to add 1 by 5 and 1 by 8, we will go by the cross multiplication method because there are only two fractions. Otherwise we can also go by the LCM method जिसमें हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, पर क्योंकि ये दो फ्रैक्शन है हम क्रॉस मल्टीप्लाई से जाएंगे. ये 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो. 8 इंटू 1, 8 into 1 is 8. Multiply 5 with 1. 5 into 1. This is 5 into 1 is 5. प्लस का ऑपरेशन करना है तो इनको ऐड कर दीजिए. 8 plus 5. This is the numerator. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8, 5 into 1 5, दोनों को प्लस कर दिया. और डिनोमिनेटर में आप लेंगे 5 into 8. दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 into 8 is 40. This is 8 plus 5 13 upon 40. Now 13 upon 40 is a proper fraction. Proper fraction मतलब numerator is less than the denominator, and when it is a proper fraction, remember all the fractions are proper fractions are less than 1. जितने भी proper fraction है वो 1 से less होते हैं. पर हमें क्वेश्चन में पूछा greater than 1, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. This is incorrect. Let's go to the second option. Option B, 1 by 5 minus 1 by 8. We'll go by same method. Cross multiply method से हम जाएंगे. Cross multiply करेंगे. 8 into 1 will be 8. Minus 5 into 1 will be 5 upon 5 into 8 is 40. So this is 8 minus 5, which is 3 upon 40. 3 upon 40 is again a proper fraction, and remember all the proper fractions are less than 1. So 3 upon 40 is also less than 1. It is not our answer. हमारा आंसर होना चाहिए ऐसा ऑप्शन which is greater than 1. So this is B is also wrong. Let's go to option number C.
ऑप्शन सी इज 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/8. फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन करना है, वेरी सिंपल. अगर यहाँ पर तो कोई टर्म सिंप्लीफाई नहीं होता, न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 5 है, 8 है, कुछ कैंसिल आप नहीं कर सकते, तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे. 1 into 1 1, 5 into 8 40. So this is 1/40, which is again a proper fraction, and it is a proper fraction, so it is less than 1. So this is also not our answer. It means अगर तीनों ऑप्शन नहीं है तो हमारा डी फाइनल आंसर, उसको लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं. बट लेट अस हैव अ लुक. 1/5 डिवाइडेड बाय 1/8, इसे क्या करना है? तो इसे ये करना है दैट वी ऑलरेडी नो. 1/5 डिवीजन को मल्टीप्लाई बना लो और उसके बाद वाला फ्रैक्शन उल्टा कर लो, ये 1/8 हो जाएगा. 8/1. This is 1 into 8 8 upon 5 into 1 5. So our answer is 8/5. Now remember, 8/5 is an improper fraction, and improper fractions are always greater than 1. जितने भी improper fractions हैं, they are greater than 1. So our answer is option number D. Its value is coming more than 1. The sum of the numerator and the denominator of the fraction 5 whole 13/17. से अब इन्होंने बोला कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम करो, तो यहां पर पहले हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू लेनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन राइट नाउ, और पहले हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. Now, when we convert mixed fraction to improper fraction, denominator तो हमारा 17 सेम ही रहेगा. Numerator will be 17 into 5. 17 into 5 is 85. ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 13 कर लीजिए. 85 plus 13, it is 98. So my numerator is 98, my denominator is 17. And when we add both of them, this will be 115. Our answer is option number B. The difference between the numerator and the denominator of the fraction 7 whole 15/19. So now they are asking the difference between numerator and denominator, means हमें numerator और denominator को आपस में minus करना होगा. For that, let us first convert this mixed fraction 7 whole 15/19 to a improper fraction. And for that, we have to multiply 19 and 7. Very simple this is. When you multiply 19 and 7, we will get 19 sevens are 153. So 133. And to that 133 add 15, it will be 148 is the numerator upon 19. Now let us take the difference of 148 and 19. So on subtracting, we get 129. Our answer is option number D. Which of the following fraction is the smallest fraction? In the question they have given 4 fractions. 15/37 is the option A. 29/37 is the option B. 21/37 is the option C. And 25/37 is the option D. Now if you look at all these fractions have same denominators. And when the fractions have same denominators, we call them like fractions. And how do we compare the like fractions? We compare the like fractions based on the numerator. The smaller numerator, in case of like fraction, the smaller numerator is a smaller fraction.
दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ लाइक फ्रैक्शन, जहां डिनोमिनेटर सेम है. तो स्मॉलर न्यूमरेटर होगा वो स्मॉलर फ्रैक्शन होगा. एंड द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड ऑन दिस बेसिस. तो यहां पर आप न्यूमरेटर देखो, सबसे छोटा न्यूमरेटर 15/37 है, 15 सबसे स्मॉलर न्यूमरेटर है. तो ये फ्रैक्शन 15/37 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन. आफ्टर 15 इट इज 21. So the next fraction, if you were to arrange this in the increasing order, ascending order, so after 15/37 will come 21/37. After 21 it is 25. We are arranging these fractions based on the increasing order of numerators. तो numerators का जो increasing order है उसके basis पर हम इसे arrange कर सकते हैं. It is 25/37 is the next fraction. एंड फाइनली द लास्ट इज, सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर है इन चारों में वो 29 है. तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा है 29/37. सो रिमेंबर, फॉर लाइक फ्रैक्शन वी जस्ट कंपेयर द न्यूमरेटर. बिगर न्यूमरेटर इज बिगर फ्रैक्शन, स्मॉलर न्यूमरेटर इज स्मॉलर फ्रैक्शन. आवर आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए. A repetitive question says which of the following fraction is the greatest fraction. Again you can see that all these fractions, which is 17/29, 12/29, 24/29 and 21/29, they all have same denominators. And if the denominators are same means they all are like fractions. इनके denominator same है तो ये like fraction है. और like fraction को compare करना है, numerator को compare कर लेंगे तो like fraction compare हो जाएंगे. The smallest numerator is the smallest fraction. सबसे छोटा न्यूमरेटर यहाँ पर 12 है तो ये सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा 12/29. Let us arrange them in the ascending order. 12/29, 12/29 के बाद 17/29. After 17/29 it is 21/29. And finally after 21 it is 24/29. So this is the order. If you want to arrange them in the increasing, this will be the increasing order. Greatest will be 24/29. And if the question asks smallest, then it will be 12/29. Our answer here is option number C. Which of the following fraction is the largest fraction? Now you see here, the numerators are same. And when in some given fractions the numerators are same, and then you have to compare that which of the following fraction is greater or which of the following fraction is smaller, then remember, when the numerators are same, then smaller denominator, जो छोटा डिनोमिनेटर होता है, इट इज द बिगर फ्रैक्शन, इट इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, और रादर लेट मी मेक इट स्मॉलेस्ट एक्चुअली. तो सबसे छोटा जो डिनोमिनेटर होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा. एंड ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर will be the smallest fraction. So if you compare these fractions, it is 18/5, second is 18/7, 18/13 and 18/11. So you see the smallest denominator is 5, and the smallest denominator 5 will be the greatest fraction when we talk about same numerator. जब numerator same हो तो सबसे छोटा जो denominator है वो सबसे बड़ा fraction हो जाएगा. Our answer here is the largest fraction is 18/5, which is option number A. However, if you want to arrange them in the ascending or say descending order, so biggest is 18/5, then comes 18/7. We are arranging them in the descending order. Then comes 18/11, and finally 18/13.
Our answer is option A. Which of the following fraction is the smallest fraction? Now you can see these fractions. The first one is 11 upon 15. Second is 9 upon 8. Third is 12 upon 13. And fourth is 3 upon 5. Now when I want to compare these fractions, here all these fractions they have different denominator. यहाँ पर सभी के जो denominator हैं वो अलग अलग है. पहला 11/15 है, दूसरा 9/8 है, तीसरा 12/13 है और नेक्स्ट 3/5. तो यहाँ पर सभी के denominator सेपरेट है. जब सारे denominator सेपरेट होते हैं then we call them unlike fraction. इसका मतलब ये सारे unlike fraction है. And when they are unlike fraction, इनका कंपैरिजन करना है तो दो तरीके से हो सकता है. एक तो आप इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालकर इन्हें सेम करो और उसके बाद न्यूमरेटर कंपेयर करो, इन्हें लाइक फ्रैक्शन बना के कंपेयर करो, विच इज़ डिफिकल्ट क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स है. डिनोमिनेटर में 15 है, 8 है, 13 है, 5 है. तो यहाँ पर जो एलसीएम मेथड है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा आपके लिए. तो सबसे अच्छा मेथड हम ये कर सकते हैं कि हम इनको डिवाइड करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं. और डिवाइड में भी आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है तो याद रखो 9/8 को आपको डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि ये ग्रेटेस्ट है. ये क्यों ग्रेटेस्ट है? 9/8 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं दे आर ग्रेटर देन 1. तो 9/8 इज ग्रेटर देन 1. और बाकी के 11/15, 12/13 and 3/5 they are proper fractions. And remember that proper fractions are always less than 1. तो proper fraction जो होते हैं वो 1 से छोटे होते हैं. इसका मतलब 9/8 जो कि improper fraction है it is greater than all the proper fraction. 9/8 इन तीनों से बड़ा है. क्यों? क्योंकि वो improper है. और proper fraction are always less than improper fraction. Proper will be always less than improper. तो उस हिसाब से 9/8 हमें पता है यहां पर सबसे बड़ा है. उसमें कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है. हम 3 सॉल्व करेंगे, 11/15, 12/13 और 3/5. इनकी हम वैल्यू निकालेंगे. फर्स्ट आई टेक 11/15. डिवाइड करने के लिए दो मेथड्स आप यूज कर सकते हैं. आई विल टीच यू बोथ. पहला 11 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, यहां डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए, यहां 0 लगा दीजिए. 15 7 105 हो गया. माइनस करेंगे, दिस इज 5, 0 लगा लीजिए, 15 3 40. तो ये आ गया 0.73 या 0.73 आप इसको बोल सकते हैं. सो 11/15 is 0.73. Next 12/13, let us divide this. 12/13, let us divide 12 को 13 से डिवाइड करेंगे. दिस विल बी, पहले हम एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, ये 112 से 120 बन गया. And we know that 39 जा 117, माइनस करिए, दिस इज 3, 0 लगाइए, 13 2 जा 26. हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक डिवाइड करेंगे. सो 12/13 इज 0.92. सो दिस इज 0.92. एंड नेक्स्ट इज 3/5. 3/5 में हमें 3 को 5 से डिवाइड करना है. तो पहले 3 5 से डिवाइड नहीं हो सकता. पहले 3 को बड़ा करने के लिए यहां डेसिमल पॉइंट और यहां 0, 5 6 30 करेंगे. और दिस इज 0.6. अच्छा, 0.6 को हमें अब देखो कि बाकी के जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं वो 2 प्लेसेस तक है. तो 0.6 को भी 2 प्लेस के लिए हम 0.60 बोल सकते हैं. क्यों हमने 6 के आगे एक 0 लगा दिया? क्योंकि हमें उसे 2 डेसिमल प्लेसेस देने थे. क्योंकि बाकी के जो हमारे डेसिमल नंबर्स थे वो 2 प्लेसेस थे. ये 0.73 था, ये 0.92 था. तो 0.6 को हमने आगे एक 0 लगाकर 0.60 बना दिया. और अब आप इनको कंपेयर करो कि इन तीनों में सबसे छोटा जो है वो 0.60 है, विच इज इक्वलेंट टू द फ्रैक्शन 3/5. एंड दैट्स गोइंग टू बी अवर आंसर, ऑप्शन नंबर डी. 3/5 हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन यहां पर हो जाएगा. Again, we have 4 fractions and we have to identify which of the following is the smallest fraction. And for doing that, you can either go by the division approach. You can also go by the fraction to decimal value से multiply करने का approach. जैसे मैंने आपको 1/12, 1/11,
1/13 सभी की वैल्यू बताइए, तो उससे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके भी आप इसके रेस्पेक्टिव आंसर्स निकाल सकते हैं. हाउएवर हियर वी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिवाइड एंड फाइंड आउट द आंसर. अच्छा, उसमें भी एक देयर इज अ स्लाइट कैच एक्चुअली, कि अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मिल जाते हैं देन डोंट डू द डिवीजन. एंड वन मोर थिंग, यहां पर आप देखो दैट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है हर एक केस में वो 1 का आ रहा है. 11 और 12 में डिफरेंस 1 का आ रहा है. 10 और 11 में डिफरेंस 1 का आ रहा है. 9 और 10 में डिफरेंस 1 का आ रहा है. और 12 और 13 में डिफरेंस 1. तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 का आए तो ऐसे केस में जो स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर वाला जो फ्रैक्शन होगा, स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर, that will be the smallest fraction. This I will show you by finding their actual value by division. आपको मैं actual value दिखा के, क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे छोटा न्यूमरेटर 9 है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होना चाहिए, पर ये मैं आपको डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाल कर भी दिखाता हूँ. द फर्स्ट इज 11/12. लेट्स डिवाइड 11/12. तो 11 में 12 नहीं जाता, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा और 11 के आगे 0 लगाना पड़ेगा. उसे हमने बड़ा कर दिया डेसिमल पॉइंट लगाकर, 11 को 110 बना दिया. 0 यहाँ आ गया, यहाँ डेसिमल पॉइंट आ गया. अब 110 में 12 जाएगा 9 टाइम्स, 108 आ गया. दिस इज 2. 0 आप ले लो, क्योंकि एक बार डेसिमल पॉइंट ले लिया तो कितने भी 0 आप ले लो. दिस इज 12 1 जा 12, रिमाइंडर 8 आ गया. इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालेंगे. ये 0.91 आ गया. दिस इज 0.91 which we can call as 0.91. This is the first. Second, 10/11. Let's divide 10/11. तो 11 तो 10 में नहीं जाता, तो इसे बड़ा करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे. 11 9 जा 99. दिस इज 1. अच्छा, सिर्फ 0 लगाने से बात नहीं बढ़ रही है, क्योंकि अभी भी 0 लगाने के बाद भी ये 10 ही है. इसे और बड़ा करना है तो एक 0 तो आप लगा सकते हो, एक और 0 लगाना तो अगेंस्ट यहाँ 0 देना पड़ेगा, यहाँ 100 हो जाएगा. अगेन दिस इज 11 9 जा 99. तो हमें इतने 3 डेसिमल प्लेस तक लेने का काम नहीं है, हम 2 डेसिमल प्लेस तक इसे 0.90 बोलेंगे. दिस इज 0.90 विच वी कैन कॉल 0.90. नेक्स्ट 9/10. 9/10 इज सिंपल, 0.90 हो जाएगा वो. This is point, this is 0, this is 9, this is 90. दिस इज कंप्लीट डिवीजन. तो अब आप यहाँ पर देखो 0.9 है, इसे अगर 2 डेसिमल प्लेस में लिखना है तो इसे भी हम 0.90 लिख सकते हैं. बट हमने क्या है 11/10 को भी डिवाइड करके 909 आ रहा था और उसे 90 बनाया था, और इसे भी हमने 0.90 बनाया. तो ये दोनों सेम है, पर इसमें 10/11 थोड़ा ये 0.909 आ रहा था और ये हमारा 0.90 आ रहा था. तो दोनों में अगर आप 2 डेसिमल प्लेस तक देखोगे तो सेम वैल्यू आ रही है, लेकिन इसमें ये 909 है और इसमें 0.90 है. सो दिस इज स्मॉलर एक्चुअली. एंड फाइनली वी हैव 12/13 which we calculated actually in the previous question. It will give us the value of 0.83, I believe. Let us do this. 12 divided by 13, it is decimal point, it is 0. 13 9s is 117. This is 3, this is 0, this is 2, this is 26. So this is giving us 0.92. So our smallest fraction is 9/10, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि वही हमारा आंसर होगा, एंड दैट इज अवर आंसर. 10/11 भी 0.90 आ रहा है, बट वो 0.909 आ रहा है, और 9/10 इज 0.90 आ रहा है. तो इन दोनों में अगर आप कंपेयर करें, सो 9/10 इज स्मॉलर, एंड दैट्स अवर आंसर. लेट्स परफॉर्म द ऑपरेशन बाय which of the following fraction is the greatest fraction. The question is asking to find out the greatest value. We will find this out using the division approach, and then we will arrange all of them in the ascending order to find the greatest fraction. जनरली हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हमें 3-4 फ्रैक्शन दिए होते हैं और उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की बात की जाती है. हम सभी की डेसिमल वैल्यू डिवाइड करके वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उन्हें अरेंज करेंगे. द फर्स्ट इज 7/11. 7/11 में हमें डिवाइड करना है 7 को 11 से.
नो 7 इज स्मॉलर, तो उसे बड़ा करना है, बड़ा करना है तो यहाँ 0 लगाना है। 0 कैसे लगेगा, क्वोशिएंट में डेसिमल पॉइंट लगाना है। एंड नाउ 11 6 66 माइनस करेंगे 4, एक बार डेसिमल पॉइंट लग गया तो एक 0 हम लगा सकते हैं। 11 3 33। दैट्स ऑल। हम 2 डेसिमल प्लेस तक ही अपना आंसर निकालेंगे, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। सो 7/11 की वैल्यू आ गई 0.63, जैसे बोल सकते हैं 0.63। सेकेंड 9/17। लेट्स डू 9/17। 9 को 17 से डिवाइड करना है, तो 9 को बड़ा करना होगा, 90 बनाना होगा, डेसिमल पॉइंट लगाना होगा क्वोशिएंट में। एंड 17 5 85। टेबल आप अपने सामने रखिए, विल बी हेल्पफुल। माइनस करेंगे, ये 5 आ गया। एक बार क्वोशिएंट की जगह पर अपने डेसिमल पॉइंट दिया है तो एक 0 हम लगा सकते हैं, उसके लिए आपको दोबार बार डेसिमल पॉइंट की ज़रूरत नहीं लगानी है। अब ये हो गया 17 3 51, बड़ा हो जाएगा। 17 2 34 लेंगे। दिस इज 16, सो दिस इज 0.52। सो 9/17 की वैल्यू आ गई 0.52। नेक्स्ट 4/13। लेट अस डिवाइड। 4 को 13 से डिवाइड करेंगे, यहाँ डेसिमल पॉइंट, यहाँ 0 लगाइए। 13 3 39, ये 1 आ गया। 0 लगाने के बाद भी ये 10 ही हो रहा है, 13 से छोटा है तो यहाँ पर एक 0 देना होगा और यहाँ 100 होगा। 13 7 90। हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो इसे नहीं लेना है, सो वी विल टेक इट एज 0.30। सो दिस विल बी 0.30 एंड लेट्स टेक 11/14। 11/14 में हम 14 को डिवाइजर लेंगे, 11 को डिविडेंड, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। ये 14 7 98 होता है। दिस इज 2, दिस इज 1, 0 लगा लीजिए। 14 8 112 होता है। एंड दिस इज 8, सो दिस इज 0.78, या इसको 0.78 हम बोल सकते हैं। नाउ लेट अस अरेंज देम in the ascending order. सबसे छोटा 0.30, so 4/13 is my smallest fraction, 0.30, ये सबसे छोटा हो गया। So 4/13 0.30 is the smallest value. After 0.30 it will be 0.52, and 0.52 is the fraction 9/17. After 0.52 it is 0.63, and 0.63 जो है वो है fraction 7/11, so there comes 7/11, and finally it is 0.78, which is the fraction 11/14. So this is 11/14. Greatest fraction answer is option number D, 11/14. What is the ascending order of the following fractions? 3/5, 7/8, 11/15 and 9/11. What we will do is we'll divide them and we'll find out their values. And then we will arrange them in the ascending order. Let us start with 3/5. 3/5 is 0.6. Let's divide 3/5. 3 को बड़ा करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, अगेंस्ट यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 5 6 30. Our division is complete. Our answer is 0.6, or we can write it as 0.6. 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है तो इसको 0.6 को हम 0.60 बोल सकते हैं। 2 डेसिमल प्लेस तक अगर आपको वैल्यू लेनी है 0.6 को आप बना लीजिए 0.60. Let's say 7/8. Let's divide 7/8. Decimal point here 0. 8 8s are 64. Subtracting, this is 6. Place a 0. 8 7s are 56.
This is 4, place a 0. 8 5 40. डिवीजन इज कंप्लीट. 3 डेसिमल प्लेस आया, पर हम इसमें से 2 डेसिमल प्लेस ही लेंगे. 0.875 पूरा नहीं लेकर हम लेंगे 0.87, विच इज 0.87. नेक्स्ट इज 11/15. Let's divide 11 by 15. Put a decimal point, place a 0. 15 7s are 105. This is 5, place a 0. 15 3s are 45. So this is 0.73 or 0.73. Finally, 9/11. 9/11, divide 9 by 11. This is point, this is 0, this is 8, this is 88, this is 2, place a 0, this is 1. 11 ones are 11. I get 0.81, which is 0.81. So now I have all the values. Let us now arrange them in the ascending order. सबसे छोटा 0.60 है, which is 3/5. After that it is 0.73, which is 11/15. After that it is 0.81, which is 9/11. And finally 0.87, which is 7/8. The increasing order. Our answer is option number B. What is the ascending order of the following fractions? Now we have done too many questions. Approach आपको समझ में आ गया है. डिवाइड करना है, डेसिमल में इनकी वैल्यू निकालनी है, अरेंज करना है और आंसर ढूंढना है. फर्स्ट इज 5/8, सेकेंड इज 11/16, थर्ड इज 3/4, fourth is 7/12. Now in this fraction topic, in the previous videos, हमने 1 से लेकर 1/2 से लेकर 1/33 तक सभी फ्रैक्शंस के वैल्यूज लिखे हुए हैं. विदाउट डिवीजन ऑल्सो. थोड़ी आप अगर इसमें प्रैक्टिस करें तो मेंटली भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. जैसे ये 5 का 50 बन जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, एक अप्रॉक्सीमेटली 0.62 इसका आंसर आ जाएगा. पर वो मेंटल लेवल आने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए. तो तब तक हम इसको डिवीजन करके देखेंगे. 5/8 इज 5, दिस इज 8. 5 को 0 लगाकर 50 बना दीजिए, यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए. 8 6 48, दिस इज 2. आगे 0 लगा लो, एक बार डेसिमल पॉइंट आ गया तो 8 2 16. अब हम इसके आगे नहीं जाएंगे. वी विल जस्ट डू इट बाय 2 डेसिमल प्लेसेस. दैट इज 0.62, जिसको हम बोलेंगे 0.62. 11/16, let's divide. Let's divide 11 by 16. डेसिमल पॉइंट लगाइए, यहाँ 0 लगाइए. 16 6 96. Subtracting, this is 4, this is 1. 0 लगाइए. 16 7s 112. 16 8s 128. Subtracting, you will get this as 12. So this is 0.68, जिसे हम बोलेंगे 0.68. 3/4 डायरेक्टली होता है 0.75. 7/12, let's do it. Put a decimal point here. This is 0. 12 5s 60. This is 1, this is 0, place a 0. 12 8s 96. This is 4, so this is 0.58 or 0.58. Let us compare them. The smallest is 0.58, which is 7/12. Then comes 0.62, which is 5/8. Then comes 0.68, which is 11/16.
Then comes 0.75, which is 3 upon 4. So this is the ascending order: 7 by 12, 5 by 8, 11 by 16 and 3 upon 4. Answer is option number C. Four upon 7 plus 2 upon 21 minus 3 upon 14. Now here what we will do, we will convert all these fractions to like fraction. हम इन सभी को like fractions में convert करेंगे. Like fraction में convert करेंगे मतलब हम इनका denominator same करेंगे. और इनका denominator जब हम same करेंगे तो इनका denominator 7, 21 और 14 है. हम इनका LCM लेंगे. Let us take the LCM of 7, 21 and 14. We'll do the common division method here. 7, 21 and 14, they all are divisible by 7. तीनों ही 7 के टेबल में आते हैं, 7 से divisible है, so divide by 7. So 7 1 जा, 7 3 जा, 7 2 जा. 3 and 2 are prime numbers. आप चाहें तो 3 और 2 से उसे डिवाइड करें, नहीं करना चाहते हैं as it is छोड़ दें, आप उसे ऐसे ही लेकर मल्टीप्लाई कर दें. This is 2 से डिवाइड करेंगे, 1 1 and 1. So my LCM is 7 into 3 into 2. Seven 3s are 21. 21 into 2 is 42. So our LCM is 42. अब हम सभी डिनोमिनेटर्स को 42 बनाएंगे. हम 7 को 42 बनाएंगे. 7 को अगर आपको 42 बनाना है तो आप उसे into 6 करेंगे. और अगर डिनोमिनेटर इंटू 6 किया है तो न्यूमरेटर भी हम इंटू 6 करेंगे. सो दिस इज 4 इंटू 6 24 अपॉन 7 इंटू 6 42. सो दिस इज फर्स्ट 24 अपॉन 42 प्लस नेक्स्ट फ्रैक्शन है 2 अपॉन 21. 2 अपॉन 21 में डिनोमिनेटर 21 को हमें 42 बनाना है. 21 को 42 बनाना है तो उसे इंटू 2 करना है, और डिनोमिनेटर को इंटू 2 किया है तो न्यूमरेटर भी इंटू 2 करना है. 2 इंटू 2 इट इज 4 माइनस नेक्स्ट फ्रैक्शन 3 अपॉन 14. डिनोमिनेटर 14 को 42 बनाना है और न्यूमरेटर को भी अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करना है. 14 को 42 बनाना है तो 14 इंटू 3 42 होता है. 14 3 जा 42 होता है. डिनोमिनेटर को हमने इंटू 3 किया है तो न्यूमरेटर भी हम इंटू 3 करेंगे. 3 इंटू 3 दिस इज 9. अब हमारे तीनों डिनोमिनेटर्स 42 हो गए, तो आंसर का डिनोमिनेटर आप 42 ले लीजिए और न्यूमरेटर्स को आप ऑपरेट कर लो. 24 प्लस 42 करना है, माइनस 9 करना है. सो दिस इज 24 प्लस 4 minus 9. Now we know that 24 plus 4 is 28. ये 28 हो गया. 28 minus 9 is 19 upon 42. Answer is option number B. That's 3 whole 5 upon 8 plus 2 whole 7 upon 12. अब ये मिक्स फ्रैक्शन है. मिक्स फ्रैक्शन में आप होल वैल्यूज, ये 3 होल 5 by 8 का 3 और 2 होल 7 by 12 का, इसको आप अलग कर दीजिए, इसको आप सेपरेट कर दीजिए. 3 प्लस 2 इसको आप सेपरेटली प्लस कर दीजिए. 3 प्लस 2 ये 5 हो गया, इसको आप अलग कर दो, अलग से रख दो. अलग रख दिया इसने. अब हम सिर्फ फ्रैक्शन प्लस करेंगे. 5 by 8 एंड 7 by 12. अच्छा, इनको कैसे प्लस करेंगे? इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम लेना होगा. अच्छा, 8 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है. ऐसा नंबर है 24. 8 3 जा 24, 12 2 जा 24. तो हम दोनों डिनोमिनेटर्स को 24 बनाएंगे. 8 को 24 बनाना है, इंटू 3 करना होगा. 5 को भी इंटू 3 करना. ये हो गया 15 अपॉन 24 प्लस 12 को 24 बनाना है, इंटू 2 कर दीजिए. 7 को भी इंटू 2 कर दीजिए. ये हो गया 14 अपॉन 24.
कॉमन डिनोमिनेटर 24 और न्यूमरेटर में 15 प्लस 14 कर दीजिए, दैट इज 29/24। अच्छा, 29/24 खुद ही एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये इसी को पहले यही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। तो अगर इसे आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करेंगे 29/24। पहले इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में ले लो। कैसे? डिवाइड कर लो 29 को 24 से, दैट्स 24 1s are 24, माइनस करेंगे ये 5 आ गया, तो होल नंबर हमारा क्वोशंट हो जाएगा, दिस इज 1 होल, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 5 डिवाइजर हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। सो 29/24 विल बिकम 1 होल 5/24। एंड नाउ लेट्स गो बैक हियर, दिस बिकम्स 1 होल 5/24। अच्छा, इसके पहले हमने ऑलरेडी होल में 5 की वैल्यू निकाल कर रखी हुई है, तो और यहां पर होल की वैल्यू 1 आ रही है, तो दोनों होल वैल्यू आप प्लस कर दो, 1 + 5 कर दीजिए, 1 + 5 हो जाएगा 6, तो होल की वैल्यू हो गई 6, और अब एक साथ लिख लो 6 होल 5/24। दिस इज अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर C. Now we can also do this question straight away by using the mixed fraction approach. तो यहाँ पर पहले आप 3 × 8 कर लीजिए, वो 24 हो गया, 24 + 5 कर लीजिए, वो 29 हो गया, दिस इज 29/8, प्लस 2 × 12 इज 24 एंड 24 + 7 इज 31/12। अब हम 8 और 12 दोनों को 24 में कन्वर्ट करेंगे, 8 को 24 बनाएंगे, इंटू 3 करेंगे, न्यूमरेटर भी इंटू 3 करेंगे, 29 × 3 इज 87, प्लस 12 को 24 बनाएंगे, इंटू 2 करेंगे, 31 को भी इंटू 2 करेंगे, दैट इज 62। कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 24, और 87 + 62 कर लीजिए, दिस इज 149। 149 को 24 से डिवाइड करना है, मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, सो 24 6 टाइम्स होता है 144, माइनस कर लीजिए, रिमाइंडर 5 आ गया, वी कैन कॉल इट 6 होल 5/24। क्वोशंट होल नंबर बनता है, रिमाइंडर न्यूमरेटर बनता है, डिवाइजर डिनोमिनेटर बनता है। आंसर अगेन इज ऑप्शन नंबर सी। तो आपको जैसे आपको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में करना है वैसे कर लीजिए, मिक्स फ्रैक्शन के होल नंबर अलग करके जैसे हमने पहले किया, 3 + 2 अलग कर दिया, फ्रैक्शन प्लस कर दिया, वट एवर वे यू आर कंफर्टेबल यू कैन डू इस क्वेश्चन को।